हेलो फ्रेंड्स, राहुल पटेल फ्रॉम फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड से आज हम बात करेंगे स्टूडेंट वीजा के बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में। पॉइंट्स फॉर टुडे डिस्कशन: व्हाई न्यूजीलैंड, एजुकेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनटेक एंड डेडलाइंस, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, वर्क राइट्स, टोटल कॉस्ट, यूनिक फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेड इंस्टीट्यूशंस, admission process and documentation, visa process and documentation, acceptable funds and finance. Fact about New Zealand. New Zealand is located in the southwest Pacific Ocean and consists of two main islands as well as a number of smaller ones. ये पूरा आपको ये मैप दिखाई देता है. The principal islands are the North and South Island, which are separated by the Cook Strait. New Zealand is in the southern hemisphere, so January and February are the warmest months. Autumn is from March to May. Winter is from June to August, and spring runs from September to November. Capital of New Zealand is Wellington, but the most popular and happening city is Auckland. The official language in use in New Zealand are English and Maori. ज्यादातर इंग्लिश बहुत बोलते हैं, तो कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे. The total population of New Zealand is approximately 4.5 million, while the population of Auckland is 1.4 million. Hence, 1/3 of New Zealand total population reside in ऑकलैंड. सबसे ज्यादा जो पब्लिक रहती है पर्टिकुलर ऑकलैंड, बहुत पीपल्स आर लिविंग. स्टडी इन न्यूजीलैंड. व्हाई स्टडी इन न्यूजीलैंड? ब्रिटिश बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, 1 year जॉब सर्च वीजा एंड 2 years वर्क वीजा. PR, permanent residency opportunity. New Zealand has an international reputation as a provider of quality education. Warm and welcoming environment. 15 years of education is acceptable in New Zealand. 15 years, that means 12 plus 3. High quality living condition. Education system. इसमें एक्चुअली लेवल होते हैं जो 4 to 10 जो आपको दिखाई देता है स्क्रीन पे. जो डॉक्टरेट होता है वो 10 नंबर, मास्टर पे 9 नंबर. अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट बैचलर्स डिग्री है तो वो 8 नंबर पे कैलकुलेट किया जाएगा. एंड बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएट डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट 7 नंबर, 6 डिप्लोमाज एंड 4 सर्टिफिकेट्स. विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन न्यूजीलैंड. University, there are 8 government funded university providing undergraduate and postgraduate degree programs. जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसका जो भी फंड आता है वो गवर्नमेंट की साइड से होता है. एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटेक्निक, अ पॉपुलर ऑप्शन इज टू स्टडी एट वन ऑफ द 16 गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटेक्निक्स. They offer a wide variety of programs which can be both academically and vocationally focused. Private territories and training establishment. There are a growing number of private territory and training providers offering an alternative study option. They offer a range of programs including professional certificate, diplomas and degrees in a diverse range of subjects including art, the hospitality industry, computer studies, secretarial studies, quality management, tourism and others. अभी इंटेक एंड डेडलाइंस के बारे में बात करेंगे हम. जो इंटेक्स है, देर आर जनरली 2 इंटेक्स इन न्यूजीलैंड, February and July. However, private institute may have different intakes of different courses. Practically, there is an intake every month in some of or other institution, resulting in recruiting throughout the year. तो इंटेक की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मिल जाते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स. आफ्टर एवरी 2 and 3 months आपको इंटेक मिल जाती है. वैसे देयर इज नो डेडलाइन एज सच इन न्यूजीलैंड, बट इट इज रिकमेंडेड टू सेंड एप्लीकेशन एट लीस्ट 4 months प्रायर टू द स्टार्ट डेट टू अवॉइड एंड मोमेंट ट्रबल्स. जो एंट्री रिक्वायरमेंट है, अगर आपको फॉर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमाज एंड बैचलर डिग्रीज
तो उसमें 12th में 50 to 70% रेंज चाहिए। एंड अगर ग्रेजुएट डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा एंड मास्टर में अगर अप्लाई करना है तो 55% एंड अबोव चाहिए। इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमास, बैचलर डिग्रीज एंड ग्रेजुएट डिप्लोमास में IELTS 6.0 विथ नो बैंड लेस देन 5.5। Few private institutions will accept IELTS 5.5, even though 5 also for specific undergraduate diplomas. Postgraduate diplomas and masters IELTS 6.5 with no band less than 6.0. स्टूडेंट का वर्क राइट्स क्या है वहां पे? 20 hours. Eligible students can work up to 20 hours in any given week during the academic year. Students undertaking a course of 12 months or more may work full time during the holidays. क्योंकि कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, तो अगर आपने 12 मंथ का कोर्स लिया है तब भी जाके आपको फुल टाइम ड्यूरेशन मिलेगा हॉलीडेज के टाइम पे। A partner of an eligible student may apply for a work permit for full-time working valid for the duration of the study course only if the student is an applicant for a full-time course of level 7 in area as specified in the long-term skilled shortage list. However, partners of all students on study course of level 8 and above can full-time without any condition. Students' work rights. The student after completion of studies in New Zealand and graduating can hold a 12-month graduate job search visa which enables him to start working in any job not relevant to qualification also. ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर 12 मंथ का जो जॉब सर्च वीजा मिले उसमें जो पढ़ाई की है उसमें ही काम मिले, दैट इज नॉट मैंडेटरी। आप दूसरा भी काम कर सकते हो। ग्रेजुएट विथ लॉन्ग टर्म स्किल्ड job offer that is relevant to their qualification can apply for a graduate work experience visa for 2 years after their 12-month graduate job search visa is over. For qualifying to work after studies, the student needs to fulfill any one of the following academic requirement: qualification at level 7 and above for at least one academic year, single qualification of 2 years at level 4 to 6, 2 qualification at level 4 to 6 each requiring at least one academic year provided the second qualification is at higher level than the first 2-year study in New Zealand in total. Job search work visa. Students who have successfully completed in New Zealand a qualification that would qualify for graduate job search work visa have to apply within 3 months after the end date of the student visa for that qualification. Within 3 months में आपको अप्लाई करना रहेगा। एक्चुअली स्टूडेंट को वहां जाने के बाद अगर उसने परफेक्टली एजुकेशन लेता है एंड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है तो एक्सटेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब तक पढ़ाई चल रही है तब तक आप पैसे कमाने में कॉन्सेंट्रेट मत करो। ये पूरा क्लैरिफिकेशन जो भी मैं दे रहा हूं वो वही समझा रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज फर्स्ट ऑफ ऑल। Students will be granted a work visa for a maximum period of 12 months on following condition. Application must provide a completed work visa application form and fee. वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करना रहता है। Evidence that they have successfully completed a qualification in New Zealand that meets the study to work qualification requirement. So there are certain terms and conditions. You must be follow each and rules and regulation. Evidence that they have a minimum of $4200 in fund available to maintain themselves during their stay in New Zealand. अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है जो आपका पर मंथ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, अगर वो नहीं है जब आप एप्लीकेशन करेंगे उस टाइम पे आपको फंड दिखाना पड़ेगा। एविडेंस ऑफ एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। न्यूजीलैंड का जो डॉलर्स है उसकी जो करेंसी है उनकी वैल्यू इंडियन रुपीज में अगर ट्रांसफर करें तो 47 होता है। तो उसके हिसाब से अगर कोई भी स्टूडेंट नॉर्मली अप्लाई करता है तो उसका जो एक्सपेंसेस होता है उसका एक ये ग्राफ है।
तो उसमें आपको दिखाई देता है कि जो कोचिंग क्लासेस एंड IELTS एग्जामिनेशन फी, ट्यूशन फी पर ईयर तकरीबन 10 लाख रुपया, उसमें से लिविंग कॉस्ट 7 लाख रुपया एंड एयरफेयर फ्रॉम इंडिया 50,000 एंड वीजा फी 15,500। टोटल एक्सपेंसेस हो गया कुल मिला के 16 लाख। उसमें से लेस पार्ट टाइम अर्निंग अगर आप रिकवर कर सकते हो तो मैक्सिमम यू कैन कवर 6 to 7 लाख। तो नेट कॉस्ट आपको मिलेगी 10 लाख रुपीज। एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्ट टाइम अगर जॉब करेंगे 20 आवर्स पर वीक एंड 40 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग वैकेशन, तो वो सब मिला के तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया खर्चा पकड़ के चलो आप स्टूडेंट का नॉर्मल। अभी PhD अगर करना है न्यूजीलैंड में तो एप्लीकेशन प्रोसेस इन न्यूजीलैंड इज नॉट सिमिलर टू अदर एप्लीकेशन डन फॉर मास्टर्स एंड बैचलर प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। एडवांटेज, इंटरनेशनल स्टूडेंट आर चार्ज्ड local New Zealand fees somewhere around 2,85,000 up to 4,45,000 only towards tuition fee per annum. Success for PhD programs. The student has to go through the website of the university and search of the various PhD topics available in particular university. Alternatives, he has to find the nearest relevant topic of his interest. Second step, shortlisting of research topics and prepare research proposal. Third, contact the relevant supervisors with research proposal. Fourth, the research plan is to be approved by the supervisor. 5, student also needs to send an application to the university through us. At this step, we start with the regular application process. Students are charged a fee similar to domestic student for PhD, which is in the range of New Zealand 5,700 से लेके 8,900 न्यूजीलैंड डॉलर। जो एंट्री क्राइटेरिया है वो 6.5 विथ नो बैंड लेस देन 6.0 एंड बैचलर विथ ऑनर्स एंड मास्टर डिग्री। जो इनटेक रोलिंग इनटेक तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है एनी टाइम। Due to low tuition fees, some universities do not pay commission while some pay nominal commission. Hence, we need to charge the student for assisting for their admission and visa process for PhD. जिसको PhD में एप्लीकेशन करनी है उसमें समटाइम्स हमारी कंपनी अगर हमें कमीशन नहीं मिलता है यूनिवर्सिटी की साइड से तो वो चार्ज करेंगे, हमारी कंपनी चार्ज करेगी आपके पास। जनरली द स्टूडेंट वीजा अप्लाइड फॉर PhD विल टेक अ लॉन्गर टाइम देन अदर स्टूडेंट वीजा। इसकी थोड़ी जो प्रोसीजर है वो थोड़ी लंबी है, तो आप गिन के चलिए कि थोड़ा एडवांस में प्री प्लानिंग करके चलिए उसका। ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, दिस आर ऑल द इंस्टीट्यूशन। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑल द इंस्टीट्यूशन। फ्लाईवर्ल्ड जो हमारी कंपनी है सारे इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा टाइप है और काम कर रही है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो उसको। साइलेंट फीचर्स ऑफ फ्लाईवर्ल्ड रिप्रेजेंटेड इंस्टीट्यूशंस। अभी हमारे जो इंस्टीट्यूशन जो हम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में हम आपको पूरी स्लाइड में स्टॉप करूंगा। तो अगर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो उसको पॉज करके वो पूरा रीड कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। You can pause and see all the matters about university. कौन से कोर्स अवेलेबल है, ये सारे कोर्स अवेलेबल है। उसके टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है, लेवल कौन से लेवल में आता है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है। अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमास है तो 75% एकेडमिक इन 4 सब्जेक्ट इन क्लास 2 12th एंड IELTS 6 नो 5 पॉइंट लेस देन 5.5। अगर PhD में करना है तो इतनी रिक्वायरमेंट है। इंजीनियरिंग कोर्स करना है तो 70% आपको चाहिए, वो तो हम आपको फ्री असिस्टेंस दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी ये वीडियो खत्म होने को आया है तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट, नाइस।